Thank you very much, TEDx MDI Gurgaon, for giving me an opportunity to speak with the huge audience, and distinguished speakers already spoke about their journey, and I'm really thankful to them. It seems that MDI Gurgaon has always been in the top list to get into to do an MBA while I was preparing for CAT and GMAT, but still somehow I could manage now on. So it is feeling very good to be here. So MBA Chawala, what does it seem? What does it look like when you heard MBA Chawala? Gone are the days when people used to make a laugh on this name, MBA Chawala. Still the journey to be invited at the guest to the colleges, corporates, and across India for selling chai, talking about chai and everything. So this is what I do believe, that a sense of satisfaction, sense of achievement I could sense. 2017 की बात थी जब मैं कैट और जीमेट की तैयारियों में लगा हुआ था, अच्छे तरीके से लगा हुआ था, दिन रात मेहनत करता रहता था और चीजें ऐसी होती थी कि कुछ पता होता नहीं था कि आगे करना क्या है, बट हाँ ये पता था कि टॉप कॉलेज से एमबीए करके एडमिशन लेके क्यूबिकल लाइफ वाली लाइफ जीना है, एमएनसीज में जॉब करना है, यहाँ वहाँ घूमना है और वीकेंड्स पे अपनी लाइफ एंजॉय करना है। ये ही काम था, दैट वाज द मोटो, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, दैट वाज एक्चुअली द थिंग व्हिच वाज गोइंग इन एंड अराउंड। बट 2 attempts, 2 failures and no colleges to get into. I was totally frustrated, depressed and down with my own expectations कि what next, life has ended, अब कुछ आगे बचा नहीं है, what to do next। but वो बोलते हैं ना कि रात है तो क्या हुआ, कल सवेरा भी तो जरूर आएगा, तो सवेरा बिल्कुल आने ही वाला था। I was very much curious about the new things, what should I do next? So what I did, I started working at McDonald's just for the sake of fun, that I would be earning couple of thousand of money on the month basis, and चलता रहेगा, टाइम पास हो जाएगा, चीजें सीखते रहेंगे। and I was just 20 and a half and 21 years old guy who is looking for a job just to learn things is really a good thing, because 20-21 साल में तो हम लोग मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ आइडिया होता नहीं है क्या करना होता है। So I worked at McDonald's for 4 months. I started from sweeping. I then went out for making burgers, wrappers, then became a manager. I used to take orders. So in that ordering time, I learned a lot, how to communicate, how to talk about business, and how to pitch the clients to upsell the business, upsell the products. I learned a lot. I thought, why shouldn't I start something of my own? It is very easy to make burgers and sell them. करना क्या है, छोटी सी दुकान अच्छी सी लाइट वाली लगानी है, प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने, it is very easy. Yeah, and I had the same intention to start. What should be the product to sell? What should be the product to start the journey? So I was doing permutation and combination with the products. So chai came into the picture, because chai has always been the companion, chai has always been a supporter, chai has always been a part and parcel of my life since the birth, even in CAT days. Chai helped me a lot to get out from the depression, to get out from the frustrations of not getting good scores. तो चाय एक ऐसी चीज से दिमाग में आई और मैंने ज्यादा सोचते हुए आगे ना सोचा और चाय का काम चालू किया और चाय का काम सोचा, एंड व्हाट शुड आई डू, अभी प्रोडक्ट तो आ गया, अभी हाउ शुड आई स्टार्ट माय बिजनेस। तो बोलते हैं ना, कुछ करने से पहले ज्यादा मत सोचो, काम चालू कर दो, उसके बाद सोचना चालू करना। वही मेरा थॉट प्रोसेस था। मैंने सोचा, व्हाट शुड आई डू नाउ, चाय इज प्रोडक्ट, how big should I open it? I was looking for a perfect restaurant with proper interior, exterior, hoarding, boarding, furniture, but no. मैंने सोचा, अगर एक बार मैंने रिस्क ले लिया, 15-20 लाख रुपए का मैंने चाय का मतलब कैफे डाल दिया और कल को आई वुड फेल, तो मैं पहले ही कैट में फेल हो चुका था, इधर भी फेल हो जाऊंगा, तो अगली बार ना पापा पैसे देंगे ना मेरे में मोरल या कॉन्फिडेंस रहेगा। So what I did is, I thought something very small, start small, like dream big, start small. Like now, that is the only philosophy which I had in my mind कि छोटा चालू करते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें टाइमिंग के साथ होती रहेगी और आगे देखा जाएगा, और कल को फेल हो भी गए तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा और मनी तो जाएगा नहीं, और मनी लॉस नहीं कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, चाहे आप थोड़ा फेल हो जाओ बाकी चीजों में। तो आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल. I got the utensils, and it took me around 45 days, 50 days to start and chai ka thela on roadside, because what happens is starting a chai ka thela was not at all easy. Being from a very good family and had never done this before is very difficult job. Doing jobs like of labor, dignity of labor was the concern and everything, but still it took me 45 plus days to start it. In 45 days I started it from roadside. I used to make chai by myself.
I used to serve people, I used to talk with people, I used to engage with their the political talk, career counseling talks, motivation and inspiration. Everything was part of the journey. So चाय नहीं बेच रहा था. Whatever I learned throughout the journey of MBA Chawala Cat is whatever you are doing today will make sense 4 years down the line, 3 years down the line. मैंने जितनी भी चीजें कैट में सीखी थी, इंग्लिश सीखना, कम्युनिकेशन सीखना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बातें, वो सारी चीजें आई यूज टू यूज एट MBA चावला चाय की दुकान. सो जो चीजें मुझे MBA में काम आती वो मैंने वहां यूज करी. तो कोई भी चीज बेकार नहीं जाती. whatever are you doing today will make sense 2 years down the line, 3 years down the line. Trust me, I'm telling you, connecting the those the thought which was given by Steve Jobs is still making sense, will always do, because it is you cannot भुला नहीं सकते इस चीज को, आप हटा नहीं सकते उसको, चीज को गवा नहीं सकते. ये चीज है, अटल सत्य है ये. उसी चीज के बीच चलता गया, धीरे धीरे चाम बढ़ता गया. उसी कैफे पे मैं छोटा सा जो मेरा चाय का ठेला था उसमें मैं इवेंट्स करता रहता था. उसके बाद म्यूजिकल नाइट, महफिल कविता, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, गरीब बच्चों के लिए चाय के साथ फंड रेज करना, किसी फ्लड में के लिए फंड रेज करना, छोटे छोटे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करना, ऐसी बहुत सारी चीजें आई यूज्ड टू डू. सो चाय वाज नॉट ओनली द थिंग्स व्हिच people used to come for. They were coming for engagement, they were coming for networking, they were coming for business, they were coming for friendship. I created an offline LinkedIn at MBA Chawala ki chai ki dukaan. So it was going really well. What should be the name? I couldn't give the name for first 3 months, so I put the Mr. Billore as a name. Mr. Billore नाम रखा. Mr. Billore का सरनेम आप देखोगे तो बिलियनर से मैच करता है, Billore. So I put अहमदाबाद at the last. Mr. का Billore का भी अहमदाबाद का, ऐसे बना MBA चावला. मतलब मैंने सोचा, बोलते हैं ना कि आप काम तो शुरू करो, पूरी कायनात आपको आगे बढ़ने में मदद करती. तो यही हुआ, लोगों का सपोर्ट मिलता गया, ये नाम मिल गया, इसका ट्रेडमार्क कॉपीराइट हो गया. मैंने सोचा भगवान भी चाहता है कि तू MBA ड्रॉप आउट कर जाएगी, दुकान डाल और नाम भी तेरा यही रहेगा. तो ये चीज ने मुझे हेल्प बहुत किया. छोटी छोटी चीजें बहुत आदमी को बड़ा बनाती है. मैं बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत छोटी करो पर बड़ी सोच रखो. काम छोटा चालू करो, उसको बड़े कर रहे. ग्रो एवरी डे 1% अगर आप रोज ग्रो कर रहे हो तो 365 दिन में कंपाउंडिंग जो होगा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, हजारों लाखों % में हो जाएगा. ये चीज फिलॉसफी हमेशा से लाइफ में रही है और इन चीजों को मैंने कभी भुलाया भी नहीं है. छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे तरीके बदलना पड़ता है. चाय बेचना बहुत छोटा काम है. चाय बेचना एक ऐसा काम है जो लोगों को लगता है कि बहुत छोटा है, बट उसमें भी बहुत ज्यादा वेराइटीज और बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए काम करना चालू किया, उनके लिए कैंपेन डिजाइन किया. बड़े बड़ी शादियों में चाय बनाने आज मैं जाता हूँ, सेलिब्रिटी के रूप में चाय बनाने जाता हूँ. वहां से इतनी इज्जत मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक चाय को इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है, एक चाय वाले को इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है. हाँ, एक और ये चीज है कि जब आप काम शुरू करते हो, जब आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, लोग आपको पूछते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं, हंसते हैं आप पे, मजे उड़ाते हैं, ये सब होगा. एंड दिस इज द प्रोसेस. आई एम टेलिंग यू, लिव द प्रोसेस. अगर आपको 5 करोड़ 8 करोड़ लॉटरी में भी मिल जाए ना, तो नेवर पिक दैट अंटिल अनलेस आपका एक्यूमेंट इतना ही हो गया कि हम उसको कहाँ रख सकें, अवेयर सकें, इन्वेस्ट कर सकें. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ प्रोसेस. एंड वन मोर थिंग, कोई भी चीजों को जितना लेट मिलेगा आपको, वो आपके साथ इतना लेट जिंदा रहेगी, वो आपके साथ इतना लेट बनी रहेगी. जो चीज टेम्पररी होती है, बहुत जल्दी आपको मिलती है, वो बहुत जल्दी वैनिश भी हो जाती है. वो चाहे प्यार हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, या जो भी हो. यही चीज मैंने लाइफ में सीखी है. और छोटी छोटी चीज, हमेशा से मेरी दोस्ती मेरे से 5-7 साल 8 साल 10 साल बड़े उम्र दराज लोगों के साथ ही रही थी. मेरी दोस्ती आज भी मेरे उम्र के लोगों के साथ नहीं थी. तो मुझे वहां से सीखने को मिला. बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या आती है, फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, टीम कैसे मैनेज होती है, ये मुझे किसने सिखाया? मुझे नहीं पता था. ये मुझे सीनियर्स ने सिखाया, मुझे अपने से बड़े लोगों ने सिखाया जो ऑलरेडी इस बिजनेस में थे. आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं, चालू कीजिए सबसे छोटा. उस इंडस्ट्री के पिताजी, उनके पिताजी, बाप जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे रिलेशनशिप बनाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ घंटों टाइम स्पेंड कीजिए. वो आपको ऐसी चीजें बता देंगे जो आप जाके गलतियां करने वाले हो आगे, वो गलतियां वो कर चुके होते हैं. क्यों ना लोगों की गलतियों से सीखा जाए, क्यों ना उनके द्वारा जो बताया गया रास्ता उस पर थोड़ा चला जाए और थोड़ी खुद की बुद्धि लगा के उस पर सरपट की तरह दौड़ा जाए. यही फिलॉसफी अगर आपकी लाइफ में है तो आपको सफलता से, आपको सक्सेस से, आपको समृद्ध बनने से कोई भी नहीं रोक सकता. यही फिलॉसफी रही है.
और दूसरी चीज, कोई भी काम करो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम करने का तरीका बदलो। मैं चाय बेच रहा हूँ तो चाय आप बेच रहे हो, हजारों लोग बेच रहे हैं, उस तरीके से मत बेचो, उल्टा तरीका पकड़ो। सीधा तरीके से कभी भी कोई चीज नहीं मिलेगी, सीधे तरीके से उसी स्पीड से मिलेगी जैसा सालों से सदियों से मिडिल क्लास लोगों को है, बाकी लोगों को मिलता है। अगर आपको तेजी से बढ़ना है तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, अगर आपको तेजी से चलना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। वो सारी चीजें नहीं करना होगी जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे में सालों से चलती आ रही है। यही चीज हमने थोड़ा सा बदलाव आज एमबीए चावला में लाने की कोशिश करी है। एमबीए चावला पे जिस हिसाब से एक तरफ लोग हंसते थे, आज प्रोक्लेमली प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से हमें एमबीए चावलों को आज बुलाते हैं, पूरी दुनिया में बुलाते हैं, चाय के लिए बुलाते हैं, शोज के लिए बुलाते हैं, पब्लिक शो के लिए बुलाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाते हैं। तो ये सारा क्रिएशन और एक चेंज हमने एमबीए चावला के माध्यम से किया है। आज देखो संडे के दिन भी मैं आप लोगों के बीच हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज मेरे को एक ऐसा लगता है कि एमबीए चावला की थ्रू आउट द जर्नी में मैंने जो चीजें सीखी है वो एक तो है ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। दूसरा चीज सीखी कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज करो, 2 3 4 साल 8 साल 5 साल भूल जाओ कि आप क्या कर रहे हो। नेवर एक्सपेक्ट अ रिटर्न, नेवर एक्सपेक्ट मनी, नेवर एक्सपेक्ट कि तुम्हें इज्जत मिले। एक्सपेक्टेशन इज फिक्टिशियस, एक्सपेक्टेशन इज बुलशिट, एक्सपेक्टेशन शुड बी नथिंग। आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो इस महीने का जीन्स मत खरीदो। आपको लग रहा है आपके स्टार्टअप में इस महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इस साल कोई ट्रिप मत खरीदो। आपको लग रहा है आपके स्टार्टअप में बिजनेस या रिवानी नहीं हो रहा है तो इस साल का आईफोन मत खरीदो। आपके खर्चों पे कंट्रोल करो, उस चीज को आप री इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में, तो आपको आगे ग्रो मिलेगी। आदमी क्या करता है, वो शुरू दिन से सेठ बनने की कोशिश करता है, अपने खर्चों को काट नहीं करता है और बिजनेस की लॉसेस को मिसमैच करता है। ये सारी चीजें आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, जिससे बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने लाइफ बीइंग के साथ सीखी है। और दूसरी 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा आपको, छोटी छोटी चीजें। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द जेम विच इज हिडन। हो सकता है कि आस पड़ोस में से 50 हजारों धंधे हो जो आप कर सकते हो। जैसे मैंने चाय का चुना, आप फूड इंडस्ट्री में बर्गर्स बना सकते हो, शेक्स बना सकते हो, आप छोटे छोटे लघु उद्योगों से चालू कर सकते हो। n numbers of opportunities and possibilities are there to do। पर हम लोगों को क्या है, हमारी जनरेशन को, मेरी उम्र के लोगों को, आपकी उम्र के लोगों को कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, कुछ ऐसी चीज करना है, इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो सोचते को जैसा करूंगा कि रातों रात लाइफ चेंज हो जाए, रातों रात दुनिया चेंज हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। इट इज अ प्रोसेस। टाटा एंड अंबानी एंड बिरला ने 100 ईयर्स पहले स्ट्रगल कर लिया जो आज हम लोग कर रहे हैं। वो 100 साल पहले से हमसे आगे। तो वो उनके दादाओं ने किया तो उनके बेटों ने उस बिजनेस को 10x या 100x बुलाया, उनके बच्चे और उसको 1000x बुलाए, आगे लेके जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू टच। वो बोलते ना, ओखली में मुंह दे दिया तो मुसली से क्या डरना। तो दैट इज द पॉइंट। आप एक बार कूद जाओ। आई एम टेलिंग यू, बिजनेस इज ऑल अबाउट स्विमिंग, बिजनेस इज ऑल अबाउट जंप इनटू वाटर। अनटिल अनलेस कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी हमारे जैसे लोगों को सुन लो, कितने भी डिस्टिंग्विश लोगों को आप बुला लो, अगर आप पानी में कूदोगे तो आपको धंधा पता नहीं चलेगा कि धंधा कैसा होता है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज ऑल अबाउट अ गेम। इट इज अ गेम। सीम्स लाइक बिजनेस इज क्रिकेट गेम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाउंड्री बाहर हो गया तो छक्का मिल जाएगा, तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। आप डिफेंड करो, किसी दिन आपको नुकसान हो रहा है तो डिफेंड करो, हो सकता है आपको रन आउट हो जाए। आपको पता चलना चाहिए कि किस हिसाब से आउट होते हैं, किस हिसाब से रन मिलते हैं, किस हिसाब से एक्स्ट्रास मिलते हैं। यही चीज है बिजनेस में। बिजनेस इज ऑल अबाउट गेम्स। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम्स। दिस इज व्हाट बिजनेस, दिस इज व्हाट द पेशेंस, दिस इज व्हाट द प्रोसेस एंड दिस इज व्हाट इट हैज टू बी। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, विच विल बी टेम्पररी ऑलवेज, अगर आपको अपनी कहानी खुद बनानी है, अगर आपको आपकी जिंदगी खुद बनानी है, अगर आपको आपका धंधा खुद का बनाना है, तो आपको प्रोसेस को जीना पड़ेगा। सफर खूबसूरत है मंजिल से। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ भगवान श्री राम का। वो भगवान श्री राम कब कहलाए? जब उन्होंने 14 साल का वनवास किया, राजा की गद्दी छोड़ी, माँ बाप को छोड़ा, सभी को छोड़ा, अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ पैदल, बिना किसी चप्पलों के, बिना किसी ताम झाम के वो निकल गए 14 साल के वनवास में। ये पूरे 14 साल की प्रोसेस ने, इस 14 साल के अखंड त्याग ने, बल ने, अटल और सत्य चीजों ने उन्हें भगवान श्री राम बनाया। अगर वो 14 साल का वनवास नहीं होता तो वो राम ही होते, वो राजा राम होते, वो भगवान श्री राम नहीं होते। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो अपने आप को ढालो प्रोसेस में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू बिकम अ प्रोसेस, इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नोबडी विल स्टॉप यू एवर। कोई आपको रोकेगा नहीं और कभी रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी घिसा हुआ शंकर होता है उसको सब पूछते हैं। जो आदमी हर तरीके से, आप एक गीली मिट्टी हो, हमारी उम्र जो 22-23 साल की, वो गीली मिट्टी की समान है।
हम जैसा चाहे उसे अभी शेप दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो मिट्टी गीली रहे और हम प्रोसेस का हिस्सा बने, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात करें, बेहतर लोगों के साथ सीखे और इवॉल्व होते रहे। हमारे प्रीवियस स्पीकर में भी बोला कि चीजें सीखते रहे, प्रोसेस का हिस्सा बने, फोकस्ड रहे, लर्न क्या करना है, अनलर्न क्या करना है, सारी चीजें सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस चीज को कर रहे हो उसको बखूबी करो, 110% करते रहो। आपको जरूरत नहीं है अकाउंटिंग से, आपको जरूरत नहीं डिजिटल मार्केटिंग है, आप लोगों को हायर कर लो। स्टे रिलेवेंट इनटू बिजनेस एंड स्टे फोकस, यही मेरा हमेशा से पॉइंट रहा है। और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, जैसे बिजनेस को बड़ा करने के लिए और क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा क्यों ना हम लोग फ्रेंचाइज में जाए। वी गॉट इनटू फ्रेंचाइज। आज इंडिया के हर कोने में हम लोग फ्रेंचाइज एक्सपांशन कर रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया से भी हमें एक्सपांशन के कॉल्स आ रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के यहाँ चाय बनाने का ऑर्डर हमें आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक शुरुआत की और आज हमें नाम से एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। अगर वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिंगल्स वायरल नहीं होता तो दिल्ली आम आदमी पार्टी चाय का कैंपेन नहीं मिलता, दिल्ली आम आदमी पार्टी का चाय कैंपेन नहीं मिलता तो बिहार बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं मिलता, बिहार का नहीं मिलता तो केरला का नहीं मिलता, केरला नहीं होता जोस्टोक नहीं होता, जोस्टोक नहीं होता तो टेडेक्स नहीं होता, टेडेक्स नहीं होता तो और पब्लिक स्पीकिंग नहीं होते। ये सारी चीजें प्रोसेस के साथ होती है। तो आई डू बिलीव इन प्रोसेस, आई डू बिलीव इन कंसिस्टेंसी। जो भी काम कर रहे हो छोटा चालू करो। आपको हाथी को खाना है, आप हाथी नहीं खा सकते पूरा एक साथ। हाथी को 1000, 2000, 5000 पीसेस में काट दो, फिर एक एक पीस रोज खाओ, दो दो पीस रोज खाओ, और डाउन द लाइन 1 साल 2 साल में पूरा हाथी खा जाओगे। दैट्स व्हाट द बिजनेस इज, दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क। कंसिस्टेंसी इज माय सेकंड पॉइंट। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। एक नाउ सेकंड इज कंसिस्टेंसी। लगे रहो। नहीं मिल रहा है पैसा, कोई बात नहीं, इज्जत नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। और गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। आज नहीं तो कल ऊपर वाला या प्रकृति या कर्मा 4 साल 5 साल डाउन द लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिजल्ट देगा। एंड यू विल नेवर गोना बी रिग्रेटफुल। फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉरएवर। इसीलिए तो बोलते हैं कुछ लोग मंडे को काम चालू करते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक करते हैं, फ्राइडे थर्सडे तक करते हैं, वो थर्सडे को खत्म हो जाते हैं। इसी कारण फ्राइडे को कर लेते हैं, सैटरडे तक कर लेते हैं। संडे की रात की जो सुबह होती है, मतलब मंडे की जो सुबह होती है ना, वो बहुत सुनहरी होती है। और बहुत सारे लोग फ्राइडे सैटरडे संडे के बीच में मर जाते हैं। ये लाइफ का एक सर्कल है, बिजनेस का एक सर्कल होता है। टाइम फ्रेम के साथ चीजें आती है। तो वो सारी चीजें। और आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, इसका क्या गारंटी। मैं कहीं और चाय पी रहा हूँ तो आज मैं आपकी चाय, MBA चाय वाले की चाय पीऊँ क्यों? मैं आज कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, नाइकी का शूज खरीद रहा हूँ, तो मैं कोई और ब्रांड का क्यों करूँ? जब तक अनटिल अनलेस आपका वैल्यू अच्छा ना हो, सर्विसेज अच्छी नहीं हो, तो इन चीज में इवॉल्व होने में 3-4 साल, 8 साल, 5 साल लग सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। आई डू बिलीव इन प्रोसेस एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोसेस। Thank you very much for the support and thank you very much to giving an opportunity to stay here. Thank you TEDx MDI Gurgaon.